त्यामुळे राम मंदिर झालं पाहिजे, ते होत आहे. हिंदूंची श्रद्धास्थान हिंदूंना वाटतं. परंतु असं केलं म्हणजे हिंदूमध्ये नेता होता येतं. रोज एक नवीन प्रकरण काढणे हे कसं चालेल? हे नाही चालणार. कि जब 5 लोग मर गए, न जाने कितनों पे झूठे मुकदमे लग गए, न जाने कितनों को अपमानित होना पड़ा है, घरों में पुलिस गई है, महिलाओं के साथ अपमान का व्यवहार हुआ, तब कह रहे हैं कि हर मंदिर को नहीं खोदना चाहिए. सनातन धर्म से जुड़े हुए उन मानबिंदुओं को नष्ट करने का काम किया था. उसके पीछे की नियति अपने बर्बरक कृत्यों को अंजाम देकर के पूरी धरती को नरक बनाने की साजिश का हिस्सा था. तो कहिए आप मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के फोन लगाकर कि इमीडिएट बंद करिए जितनी बदतमीजियां चल रही हैं मंदिर मस्जिद के नाम पे. ये खुदाई जो है हमारे देश का सौहार्द, हमारे देश का भाईचारा, हमारे देश का गंगा जमनी तहजीब को खो देगा. Good evening, ladies and gentlemen. Watch these 6 visuals on your screens. These are the 6 sites which are today in the eye of a Sanatan storm. Were these once holy places of Astha, but today are locked up or buried? From Sambhal to Aligarh, Muzaffarnagar, Varanasi, Bareilly and Gonda, claims have been made by the devout that remnants of Hindu temples lie here, destroyed and abandoned by injustice of the past. In fact, in Uttar Pradesh's Sambhal, today an ASI team reopened an ancient temple after 46 years. They conducted carbon dating of 5 pilgrimage sites, including the Bhadrak Ashram, the Swarg Deep and Chakrapani, along with an inspection of 19 wells. This survey comes in the midst of Sambhal turning into a laboratory of Rajniti. Akhilesh Yadav and Rahul Gandhi's parties were at the front lines and fear-mongered that Muslims and their symbols were being attacked. As the flames were being stoked, there was violence and stone pelting. Samajwadi Party Ziaur Rahman Barq was accused of inciting riots. He also faced back-to-back charges of bijli chori and encroachment. Today, the stairway to his house was bulldozed by the Sarkar, allegedly for being illegal. Akhilesh slammed it as BJP's model to destroy political rivals, while Barq said, Inshallah, मैं और मेरी community will get justice. Well, he brought in the community on an issue of bijli chori and irregularities in construction. Is linking encroachment to religion secular? Well, you the people decide. Interestingly, Chief Minister Yogi Adityanath has pointed out that temples have been destroyed in Kashi, Ayodhya, Mathura, Sambhal and Bhojshala, but all those dynasties were later reduced to dust. He has warned, stop this injustice to symbols of Sanatan. In the midst of it all comes a message of peace. RSS chief Mohan Bhagwat has warned, stop all this Mandir Masjid. After Ram Mandir, learn to live in harmony. In fact, he lashed out at those who were trying to build their own careers in the garb of finding new mandirs under every single masjid. But coming a full circle, Akhilesh Yadav has again come back to the Sambhal issue, saying first withdraw all false cases and then preach. So, ladies and gentlemen, the Motorola legitimate question that we're asking on the News Hour Spotlight tonight, Rajniti ki aag, bulldozing peace, is that really what's happening on the ground? That's the question, and that's the debate coming up on the other side. You're watching the News Hour at 9. Debate number 1 on Times Now, Super Prime Time.
And on the Friday News Hour Spotlight, I'm being joined by Harshvardhan Tripathi, senior journalist. Also joining me this evening, Shehzad Poonawalla, national spokesperson of the BJP. With me is Dushyant Nagar. He is a political analyst, supports the Congress party. Vivek Silas, national spokesperson of the Samajwadi Party. Vivek Srivastava, left parties and supporters of the left viewpoint, political analyst. And right next to me on my right is the man of the moment. Waris Pathan gives birth to 1,000 controversies every minute. Thank you very much for joining me in the studio, gentlemen. सबसे पहले तो मैं पूछूंगी विवेक साइलस जी कि बिजली चोरी का अगर आरोप हो या अतिक्रमण का आरोप हो तो पूरे के पूरे कौम को बीच में लाना, क्या ये सही है? क्या ये भड़काने की राजनीति नहीं है? क्या ये राजनीति वही राजनीति नहीं है जिसका आरोप बीजेपी शुरू से लगा रही है कि बाहरी लोग बुलाकर 24 नवंबर को वहां पथराव किया गया, पत्थर बरसाए गए और उसके बाद जो हालत हुई वो देश भर ने देखा? देखिए, अगर जहां तक बिजली चोरी की बात है नाविका जी, अगर ऐसा हुआ है तो जो देश का कानून है या लॉ ऑफ द लैंड है उसके तहत उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है और होनी भी चाहिए अगर उन्होंने ऐसा कुछ किया है। लेकिन ये क्योंकि समाजवादी पार्टी के सांसद हैं इसलिए हाईलाइटेड हैं। अब एक हफ्ते पहले हरीश शाक्य जो हैं भारतीय जनता पार्टी के सिटिंग एमएलए, उनके ऊपर गैंगरेप और फ्रॉड का चार्ज लगा। वो बिस्ली से आते हैं, बदायूं से। लेकिन कमाल की बात है कि किसी भी मीडिया ने उसकी कोई चर्चा नहीं की। और जहां तक भ्रष्टाचार की बात है तो मैं समाजवादी पार्टी की तो आज बात ही नहीं करना चाहता, मैं तो भारतीय जनता पार्टी की बात करूंगा। नंद किशोर गुर्जर यहीं बगल लोनी के विधायक हैं, उन्होंने कहा ऐसा भ्रष्टाचार जहां 50% कमीशन देनी पड़ती है ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हो रहा है। ये भारतीय जनता पार्टी के विधायक ने कहा। श्याम प्रकाश आते हैं हरदोई से, उन्होंने कहा मैंने अपने 45 साल के कैरियर में जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस समय प्रदेश में चल रही है ऐसा भ्रष्टाचार होते हुए नहीं देखा। और साथी दल अनुप्रिया पटेल का अपना दल है, उन्होंने भी इस बातों को उठाया था। तो सिर्फ एक तरफ से बात करना कि ठीक है समाजवादी पार्टी ही सब काम कर रही है, ऐसा नहीं है। दूसरी बार आपने कहा कि वहां पर हंगामा हुआ, लोगों ने यहां तक कहा कि 22 ट्रक, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं ने कहा 22 ट्रक पत्थर बाहर से आए। तो क्या भारतीय जनता पार्टी की इंटेलिजेंस और पुलिस क्या सो रही थी? वो उनको पता ही नहीं चला कि 22 ट्रक आ गए। यहां तक मीडिया ने दिखाया कि पाकिस्तान से बनी हुई बंदूकें और कारतूस वहां मिला। तो ये पाकिस्तान और से बना हुआ कारतूस और बंदूक हिंदुस्तान में आया कैसे? पहले इसका जवाब दीजिए, क्योंकि बॉर्डर तो आपके हाथ में है। हर चीज पे विपक्ष को दोष देना, समाजवादी पार्टी को दोष देना गलत है। अगर किसी ने भी गलती की है, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी का हो, कांग्रेस का हो, एआईएम का हो या समाजवादी पार्टी का हो, कानून सबके लिए एक है। बर्ख गलत कहां है? अडानी जी का मीटर लगा हुआ है, गड़बड़ी का आप कर रहे हो, आप सीढ़ियां तोड़ रहे हो। घर के पीछे ये दीवार है, दीवार के आगे छोटी सी नाली है, नाली है, जाने के लिए छोटी सी सीढ़ी बनाई है, पूरी मर्दानगी दिखा रहे हैं आदित्य योगीनाथ। अब भाई गड़बड़ मीटर लगाओगे, बच्चों का बोर्ड का पेपर है, उसमें बिजली काटने पहुंचोगे तो आदमी प्रोटेस्ट करेगा कि नहीं करेगा? करना चाहिए। तो ये गड़बड़ी योगी के एडमिनिस्ट्रेशन की है ना। यहां तो मुसलमान होना चाहिए। और आज आप ही के एक प्रवक्ता ने सीधा बोल दिया, मुसलमान हटाओ मंत्रालय, जल्दी से योगी आदित्यनाथ बना लें तो बड़ा अच्छा रहेगा। ब्लैक का ब्लैक और व्हाइट का व्हाइट। क्या जी आरोप लग रहा था कांग्रेस को कम्युनिस्ट बर्बाद कर रहे हैं, अब तो सपा पे भी वो बेचारे बोल भी नहीं पाए, तब तक उससे ज्यादा बड़ा तर्क लेकर आ गए। आदमी इनोसेंट है, आप उसको विक्टिमाइज कर रहे हैं। कम से कम विवेक साइलस जी कह रहे थे कि लॉ विल टेक इट्स ओन कोर्स। विवेक श्रीवास्तव जी को तो लॉ की जरूरत नहीं है। शहजाद पूनावाला जी, अपने विधायकों में वो रेपिस्ट जो आपका विधायक है उस पर जरूर बोलिएगा। देखिए, दोनों में होड़ ये लगी हुई है कि कौन अपने नाम के खिलाफ जा सकता है। इसीलिए एक विवेक साइलस ने बेतुकी बातें की तो विवेक श्रीवास्तव ने बोला कि भाई नहीं, मैं उससे ज्यादा कर सकता हूं। तो मुझे लगता है यही कैप कंपटीशन है, इसको बोलते हैं कैप का कंपटीशन। ये नहीं कि कैप पहननी है, कैप मतलब कंपेटिटिव अपीजमेंट पॉलिटिक्स। अब कंपेटिटिव अपीजमेंट पॉलिटिक्स में देखिए कि आतंकवाद का वैसे तो कोई धर्म नहीं होता, यही लोग चीख के बोलते हैं, पर बिजली चोर का धर्म होता है, टोटी चोर का धर्म होता है, बकरी चोर का धर्म होता है। गलत बात है ना। मैंने तो किसी का नाम नहीं लिया, मैंने किसी का नाम पता आप कहां एंड कर रहे हो। मैंने कहा नहीं, आप बोलेंगे तो मैं ही बहुत कुछ कह रहा है। आपके नेता के खिलाफ बोलूंगा। नहीं, मैंने तो नाम नहीं लिया। नाम का जी, अगर मैंने किसी का नाम लिया हो तो आप उसको एडिट करवा दो, पर मैंने किसी का नाम नहीं लिया है।
पर मुझे लगता है कि रिएक्शन से पता चल रहा है, और जिसका भी नाम है जनता समझेगी मैं भी ऐसा सुनिए नाविका जी, मैंने तो किसी के बीच में भी नहीं बोला और मैंने नाम भी नहीं लिया। एक एक करके बोलिएगा, मैं काउंटर का समय सबको मुझे लगता है कि नाविका जी के प्रति तो कम से कम अविश्वास प्रस्ताव मत लाइए। उन्होंने अगर उनको लगता है कोई मेरे खिलाफ तो बहुत पहले आ चुका है, आपको तो 14 लोगों ने लोकसभा चुनाव से पहले बॉयकॉट का मैं ये कह रहा हूं, अगर मैंने कोई असंसदीय भाषा का या शब्द का इस्तेमाल किया तो नाविका जी आप कॉम्पिटेंट है मुझे रोकने के लिए, टोकने के लिए। देखिए दूसरी बात यह है कि अब उन्होंने कहा कि देखिए कौम को टारगेट किया जा रहा है। मैं पूछना चाहता हूं ये 16,000 वाट 16 किलोवाट इस्तेमाल हुए 3 स्टोरी के घर में। कितने मुस्लिमों के पास 3 स्टोरी के घर है? कितने मुस्लिमों को 6 महीने तक जीरो बिल आता है? कितने मुस्लिमों के घर में 3 स्प्लिट एसी, 2 फ्रिज, 1 डीप फ्रीजर, 1 कॉफी मेकर, 1 माइक्रोवेव, गीजर, ये कितने मुसलमानों के घर में है? मतलब बिजली चोरी, सुनिए ना सर, विवेक जी मैंने आपके बीच में नहीं बोला। मतलब कि एक तो आप कानून तोड़ो, यूपीसीसीएल सप्लाई करती है वहां पर बिजली, उनका नुकसान करवाओ, और जब, और पता है आपको बर्क का मतलब, मैं बता रहा हूं, बताओ किसका, बता रहा हूं मीटर किसका है आपका। देखिए मीटर से आप चलते ही नहीं हो ना, आप तो मीटर के ऊपर। सुन लीजिए सर, बीच में हर वाक्य में मत बोलिए। बर्क का मतलब ऐसे उर्दू में पता क्या होता है? बिजली। तो बर्क, और बर्क साहब डिस्ट्रिक्ट इलेक्ट्रिसिटी कमेटी के चेयरमैन हैं, उनका काम है कि बिजली की चोरी को रोका जाए। मतलब जिसका काम है कि चोरी रोके वही चोरी कर रहा है। देखिए आखिरी बात मैं कहना चाह रहा हूं, देखिए पूरी मानसिकता क्या बन चुकी है कि हमारे पास पैन कार्ड है, आधार कार्ड है, राशन कार्ड है, इनके पास परमानेंट विक्टिमहुड कार्ड है। मतलब आतंकी पकड़े जाते हैं, आतंकी मुसलमान है, छोड़ो, हाईकोर्ट को रोकना पड़ता है। अगर कोई दंगाई पकड़ा जाता है तो दंगाइयों को छोड़ो, दंगाइयों के साथ खड़े हो जाते हैं क्योंकि मुस्लिम दंगाई। और अभी बिजली चोरी के मामले में उनके सांसद साहब का प्रूफ आ चुका है, तो उन्हें मुसलमान इसलिए टारगेट किया जा रहा है। मुझे लगता है मुस्लिम समुदाय ने इनके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए और बोलना चाहिए कि किस प्रकार का कुतर्क है। भाई सारे मुसलमानों का नाम मतलब बदनाम किया जा रहा है। सारे मुसलमान चोरी करते हैं बिजली की? अभी तक इनमें से किसी ने ऑब्जेक्शन नहीं किया, पर मैं ऑब्जेक्ट कर देती हूँ। आपने कहा मुसलमान दंगाई है, सारे मुसलमान दंगाई नहीं, मैं ये नहीं कह रहा। मैं कह रहा हूं कि जब मान लो एक राम गोपाल मिश्र मारे गए, वो तो दंगाई नहीं थे, उनके घर कोई डेलीगेशन पहुंचा, पर जिसने कट्टे चलाए पुलिस पर उनके घर पे चले गए, उसके घर पर चले गए क्योंकि मुसलमान के घर के ऊपर चढ़ करके झंडा उतारोगे। क्या करने गए थे बहराइच? उस घर में आपने क्या बोला? किसका झंडा उतार रहे थे? रिपीट कर, क्यों उतार रहे थे? एक सेकंड, अगर झंडा उतार दे तो गोली मार देंगे। विवेक जी सुन लीजिए, महिलाएं हैं, औरतें हैं, बहनें हैं, बेटियां हैं, सुनना भी पड़ेगा। तो क्या करोगे? चुप बैठोगे? एक वाक्य सुनना भी पड़ेगा। हाँ बोलिए। लाउड म्यूजिक प्ले करने की या झंडा उतारने की एक ही सजा, गोली मारना। नहीं, झंडा उतारने की, झंडा उतारने तो गोली मारना। क्यों करता है? पुलिस ने क्यों नहीं रोका घर में घुसने के पहले? जब वो घर के अंदर घुस रहा था पुलिस ने रोका क्यों नहीं? भीड़ ने रोका क्यों नहीं? गोली मारने का अधिकार है, गोली मारने का अधिकार है। आपने प्लान करके संविधान वाले, क्योंकि घर मुसलमान की दुकान और संविधान की दुकान, घर मुसलमान का था, इसलिए जिसको मर्जी घुसा दो। एक मिनट, मैं पूछना चाहती हूँ, ये इस देश में सेक्युलरिज्म का जो चोला है बहुत सालों से आप लोगों ने पहना हुआ है। मैं पूछना चाह रही हूँ, आज एएसआई ने सर्वे किया, ऐसा सर्वे पहले भी हुआ, 24 नवंबर को हुआ, 23 नवंबर को हुआ, 19 नवंबर को हुआ ना? 24 को वहां पथराव हुआ, पहले 2 दिन नहीं हुआ, आज एएसआई का हुआ, कोई पथराव नहीं हुआ। वारिस पठान, ये एएसआई का सर्वे सेक्युलर था कि नहीं था? पूरी मैं आपकी बात बताता हूं। अभी शहजाद पुनावाला ने बात की कि कैप कंपटीशन चल रहा है, यानी एक होड़ लगी हुई है। होड़ किसकी लगी है पता है? कौन सबसे बड़ा हिंदू, कौन हिंदुओं का चैंपियन है, कौन हिंदुओं के लिए आगे बढ़ सकता है। अब आगे बढ़ने के लिए करना क्या है? तो मुसलमानों को गालियां बको, मुसलमानों की मस्जिदों को तोड़ो, मुसलमानों की मस्जिद के नीचे जा जाके मंदिर ढूंढो। ये कंपटीशन भी हो क्या गया कि 3 जन में और एक कंपटीशन चल गया। एक तो नरेंद्र मोदी, दूसरे मोहन भगवत और योगी। अभी तीनों को मैं तो चाहूंगा कि एक जगह बैठ जाए जाके, और जो इनके आपस में रिफ्ट है, मतभेद है, सब खत्म कर दे। क्योंकि एक बोलता है मोदी जी मैं सबका साथ सबका विकास में विश्वास करता हूं, तो मोहन भगवत बोलते हैं आपको क्या जरूरत है बार बार सबके जाके खोदने की, क्यों जाके मंदिर मस्जिदों के नीचे आप शिवलिंग ढूंढते हो। योगी जी बोलते हैं मैं मेरी चलाऊंगा, मैं ढूंढ के दिखाऊंगा। तीनों में चैंपियनशिप चल रही है। इसमें हो क्या रहा है? फंस कर रहा है मुसलमान। अब आपने बात की संभल की, तो संभल के अंदर आप एक चीज बोलना भूल गए। आपने कहा 19 को सर्वे हुआ, बिल्कुल हुआ। 4 बजे ऑर्डर लाए, 6:30 बजे चले गए, 45 किलोमीटर दूर जाके सर्वे भी कर दिया, बाहर आके बोल दिया सर्वे हो गया।
24 तारीख को जो सर्वे हुआ ना, क्या जरूरत थी सुबह 7 बजे जाने की? पब्लिक जमा हो गई, पानी को देखा, वहां है पुलिस की फायरिंग में 5 मुसलमान युवा ने अपनी जान खो दी, 5 गोली लगी, शहीद हो गए। आज तक नरेंद्र मोदी योगी ने उनके खंडन नहीं किया कि नहीं चलो हमको उसके घर वालों की तरफ संवेदना है कि ठीक है किसी की जान चलेगी। उनके घर जाना है, लोगों को जाने नहीं देते आप। पुरसा करना तो एक सवाब का भी काम है, किसी के घर में मौत मैयत हो गई, जाते हैं लोग मिलने, आप जाने नहीं देते। उसके बाद अब आप खुदाई का गोपाल मिश्रा के घर जाने देते, जाते क्या आप? अरे हम तो हर जगह जाते हैं, जाने दो। आपने पेशकश कभी की? आपने कभी पेशकश की जाने की? अरे पेशकश क्या करेंगे, रोक देते रास्ते के ऊपर, फायरिंग करके गोली मार देंगे हमको। आपने पूछा ही नहीं, आपने पूछा ही नहीं। धक्का लगता है, सर पे दिखती है, उसके बाद पट्टा दिखता है, उसके बाद इतना बड़ा पट्टा दिखता है, ब्रेन का ट्रांसप्लांट होगा। अच्छा वारिस भाई, उसके बाद 1 घंटे बाद पट्टा निकल गया। अरे इतने तो लोग ढोंगी नौटंकी बात हो गए। अरे आज जया भादुरी जी, इतनी बड़ी एक्ट्रेस जया बच्चन जी, जो समाजवादी की, उन्होंने कह दिया कि अगर सबसे बड़ा पुरस्कार किसको एक्टिंग में देना चाहिए तो बीजेपी के चलिए, अब संभल से मामला संसद तक आ गया, संभल से मामला संसद। खुदाई का क्या, मुझे एक बहुत बड़े हिंदू के जानकार है जो अच्छे लेखक भी, उन्होंने मुझे बताया, वारिस भाई जो रोज बोल रहे ना मूर्ति प्रकट हो रही है, यहाँ से निकल रही, तो उसका क्या है पता है? हर दिवाली में, आप लोग यहाँ पे हिंदू भी है मुझे पता है, दिवाली या गणपति में एक आइडल लाते हो, अगले साल दूसरा आइडल लाते हो, तो पहले आइडल क्या करते हो आप? उसको कहीं ना कहीं पानी में उसका विसर्जन कर देते, या किसी मंदिर का कोई मूर्ति है उसको कहीं जाके आप बड़ी कर देते, कुछ भी कर। आप जब सालों साल बाद खोदेंगे तो कुछ ना कुछ तो निकलेगा ना। हमारे चौपाटी में गणपति के टाइम पे शहजाद पुना वालों को मालूम है कितनी गणपति जी का विसर्जन किया जाता है। अब 8-10 दिन बाद निकलती है। मुंबई में रहने वाले वारिस पठान जी, मुंबई में रहने वाले वारिस पठान जी, गणपति बप्पा मोरिया पे जो हुआ वो तो आपके साथ खड़ा हूं, पर जो हुआ था वो आपको याद है ना, माफी मांगनी पड़ी थी। नहीं, माफी मैंने क्या मांगा था आपको नहीं पता है। माफी तो वाले को कुछ लोगों ने कहा कि हमारे इसमें किसी और वो मूर्तियां जो मिली हैं वो ऐसी वाली नहीं है जो मिट्टी की वाली, लेकिन हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, इनको लगता है, इनको ये देखिए कैसे अभी कोर्ट ने, एक मिनट, अभी कोर्ट ने कुछ कहा नहीं, अभी एएसआई का सर्वे हुआ नहीं, अभी किसी ने ये बताया नहीं कि वो मूर्तियां क्या हैं, कैसी हैं, लेकिन इनका वर्डिक्ट आ गया, प्रकट हो चुकी थी बाबरी का टाइम भी। इनका वर्डिक्ट आ गया। ये वर्डिक्ट दे सकते हैं हर्षवर्धन त्रिपाठी, लेकिन हिंदू नहीं बोल सकते। अब हमारी बाबरी एक मर्तबा इसी फरेब के जरिए शहीद हो चुकी है, तो नहीं हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, शहजाद भाई आ रही हूँ। हर्षवर्धन त्रिपाठी, पहले तो मुझे बड़ा आज दुख हुआ अखिलेश यादव जी को सुनकर। मैं तो ये उम्मीद कर रहा था वो कहते कि हमारे सांसद के यहाँ 5 महीने से 0 बिजली बिल आ रहा है, ये तो क्राइम है, स्टेट रेवेन्यू को सीधे सीधे हमारा सांसद उसकी चोरी कर रहा है, इसकी जांच कराइए। और मैं अपने सांसद को बोलता हूं कि अगर ऐसा गलत किया है तो उसका भुगतान करे, बाकी जो चीज है हम उसके साथ खड़े हैं। लेकिन दुर्भाग्य कि इसमें मुसलमान लाके खड़ा कर दिया। अब जितने लोग हैं डिबेट में, मैं लगातार सुनता हूं कि वो कहते हैं हर तरफ खोदे जा रहे हैं। एक जगह तो बताइए जहां कहीं खुदाई हुई हो। नविका जी, एक भी जगह आज तक खुदाई हुई ही नहीं। क्या जामा मस्जिद में खुदाई हुई? नहीं जाइए। क्या ज्ञानवापी में? नहीं, मैं बता रहा हूँ, क्या ज्ञानवापी में खुदाई हुई? नहीं हुई। क्या संभल में खुदाई हुई? नहीं हुई। क्या कृष्ण जन्मभूमि पर खुदाई हुई? नहीं हुई। सर्वे और एग्जीक्यूशन दोनों का अंतर समझ लीजिए भैया। सर्वेक्षण और खुदाई में बड़ा फर्क है। और सर्वेक्षण क्यों होता है? क्योंकि किसी जगह पर किस तरह की स्थिति उसको देखना होगा। और जहां तक हमारे जो मित्र हैं विवेक भाई, दंगा कराओ, विवेक भाई लड़ाई कराओ, इनको किसी भी तरफ जाके जहर बोल देना। अच्छा, जहां खड़े हैं जी, एक मिनट, सवाल हर्षवर्धन त्रिपाठी ने सही उठाया। आ रही हूं। सवाल हर्षवर्धन त्रिपाठी जी जो बोल रहे हैं वो सही है। अखिलेश जी ने कहा खुदाई के नाम पर भाईचारे को खत्म किया जा रहा है। जब खुदाई हुई नहीं तो ये क्यों कहा गया? जगह का बता दें, अगर खोदा गया
कुएं में पहले विसर्जन होता था? त्रिपाठी जी, आप ब्राह्मण हो, विवेक जानते जी, हो। आपको जानकारी पुराने नहीं। जमाने में कुएं विवेक में भी जी, विसर्जन होता था। आप कहानी नहीं सीधी सुनाई। सी बात है, बताइए कहाँ खुदाई हुई? खुदाई कहाँ हुई? कहाँ खुदाई हुई बताइए? कौन सी मस्जिद खोदी गई? हर जगह आप लोग कह रहे हैं कि मस्जिद खोद के तब निकाला जा रहा है। तो भागवत जी ने कहा मस्जिद खोद के शिवलिंग नहीं खोजना है। मेरे प्रश्न सुन लीजिए। मेरा पहला प्रश्न है, फिर आप आपका प्रश्न इंटेंशन पूछे, इस सर्वे के आप पीछे उत्तर क्या है? देने के बजाय नहीं, प्रश्न मैं आज पहले आप ये उसी बता में दीजिए उत्तर ना। लिखा है ना आप सर। लोगों ने कहा खोद रहे हैं। खुदाई क्या, आप तोड़ दोगे सब कुछ? आपका अरे इंटेंशन है, फिर देखिए, आपका झूठ बोलने इंटेंशन ही लगे। गलत है। मुझे प्लीज आपका आराम से, इंटेंशन आराम सुनिए, से यहाँ खुदाई नहीं है, कुछ नहीं खोद रहा। आपका इंटेंशन अरे हो गया सब ये जो लोग सो कॉल्ड सर्वे के लिए जा रहे हैं, सो कॉल्ड सर्वे के लिए बताते हैं। रिसर्च नहीं अब है। विवेक जी सुनना भी पड़ेगा। इंटेंशन कोई साइंटिफिक चीज को चलिए, पता करना, अब विवेक जी- आर्कियोलॉजिकल सर्वे नहीं है। अब इनका एक- इंटेंशन सिर्फ अन्याय हो जाएगा। सिर्फ कम्युनल डिसहार्मनी है। मैं शहजाद पूनावाला जी आप ही से पूछ रही हूँ, आप ही से पूछ रही हूँ, आपका दिल, आपका यहाँ जो है ये सब ट्रांसपेरेंट है क्योंकि आपके इंटेंशन इनको दिख रहे हैं। देखिए इंटेंशन कैसे दिखते हैं? पूनावाला की एक बात बताता हूँ, यहाँ है ना वो बोले सनातनी, मैं वो मुसलमान हूँ पिछड़ा हुआ, बीजेपी के हेडक्वार्टर में जाके सनातनी हिंदू बन जाते, दोनों गेम प्ले करते हैं। उनको बोलो असली क्या है उनके दिल में हुआ। चलिए अब मैं जवाब दूं। अब मैं जवाब दूं क्या? चलिए मेरा हाथ छीना जा रहा है। चलिए अब मैं जवाब अरे वारिस भाई हो गया, हेडक्वार्टर में मैं सनातनी खत्म कर लो फिर मैं बताता हूँ क्या है। देखिए ऐसा है नाविका जी, चलो मैं बीजेपी के हेडक्वार्टर में या टाइम्स नाउ के चैनल में दोनों जगह भारतीय हूं, इनकी तरह कहीं भारतीय और कहीं पाकिस्तानी नहीं बनता हूं। नहीं, कभी भारतीय और कभी पाकिस्तानी नहीं बनता हूं। सुन लीजिए, अब सुन लीजिए, अब सुन लीजिए। पहले बताइए। अरे भाई नहीं आता तरीका नाल का ये तो डोमिनेशन हो जाएगा। नहीं, एक मिनट एक सेकंड। ऑर्डर। अरे नाविका को बोलने का मौका तो मिलना चाहिए। पाकिस्तानी कैसे बोल दिया ना? मैं आपको बताता हूँ, मैं आपको बताता हूँ, पाकिस्तानी मैं मत बता रहा हूँ ना भाई, कहिए। मुझे बोलने तो दीजिए। मत कहिए। अरे मैं बोल रहा हूँ, मैं नहीं हूँ कैसे- पाकिस्तानी। भाई या तो तय किया गया कि मुझे एक भी शब्द नहीं बोलने देना। नहीं, पर पाकिस्तानी मत मैं बता बुलाइए। रहा हूँ जी, एक मिनट। अगर मेरे धर्म के ऊपर मुझे टिप्पणी की जा रही है कि मैं भाजपा में जाता हूं तो सनातनी बनता हूं और यहां पर आता हूं तो पिछड़ा मुसलमान बनता हूं, दोनों मेरी संस्कृति का हिस्सा है, तो मेरे ऊपर सवाल करे तो ठीक है। और अगर 370 पर किसने डाउट किया, किसने सर्जिकल स्ट्राइक पर डाउट किया? पाकिस्तान और इन लोगों ने एक ही सुर में बोलते हैं तो पाकिस्तान नहीं हुआ क्या? अब दूसरी बात, अब मुझे टॉपिक पे आने दीजिए प्लीज, मैं रिक्वेस्ट करूं, इतना इंटरप्ट तो किसी को नहीं किया। मोहन भागवत पे भी बोल प्लीज, दो। मैं सब पे आ रहा हूं। बोल रहे हैं। अरे पर एक डिबेट में हम लोग अपनी अपनी बात 30-30 सेकंड में रखने के बाद क्यों नहीं? आपने इतना लंबा बोला, वारिस जी ने 5 मिनट बोला। बोलिए। अब सुनिए, वारिस जी ने बोला हम तो सबसे मिलने जाते हैं, हम कभी बैर नहीं करते, राम गोपाल मिश्र से भी मिलने जाएंगे, ये भी सब कुछ बोला। ताहिर हुसैन को टिकट दिया, अंकित शर्मा के घर गए क्या? वो ताहिर शर्मा, अरे अंकित शर्मा तो मारा गया ना, पर अंकित शर्मा मारा गया कि नहीं मारा गया? आईबी ऑफिसर को 40 बार गोंद आ गया, एक घर में गए क्या? हम प्लीज हर बात पे टिप्पणी नहीं हो सकती किसी की जान जाती है। अरे आप हर स्टेटमेंट में टिप्पणी, नाविका फिर मैं भी ऐसा शुरू करूंगा, नाविका फिर मैं भी हर स्टेटमेंट में टिप्पणी करूंगा, नाविका फिर मैं भी हर स्टेटमेंट में टिप्पणी करूंगा, फिर आपको बुरा लगेगा। ठीक है। अब दूसरी बात, इन्होंने कहा कि देखिए मोहन भागवत जी ने कहा है कि मस्जिद में जाके लिंग नहीं ढूंढना, शिवलिंग नहीं ढूंढना, बहुत अच्छी बात है, हम तो ये कह रहे हैं। मैं तो ये कह रहा हूं कि एक बार ये भी अनाउंस कर लो कि 1500 साल पुराने गांव में जाकर वक्फ प्रॉपर्टी नहीं ढूंढनी। नो किसानों की जमीन में वक्फ प्रॉपर्टी। सही बात है, सही बात उठाइए, सही बात उठाइए। Do you endorse Mohan Bhagwat? Please. Do you endorse I will Mohan Bhagwat? I will Yes, answer. sir. Yes or no बोल दो। विवेक श्रीवास्तव। Yes or no बोल दो ना। विवेक ऐसे Sir, yes yes or no बोल दो अरे ना। भाई सुनिए, बोल दिया ना। मोहन भागवत। अरे सुनिए ना विवेक, क्यों ऐसे कर रहे डिबेट? और तीसरी बात, आप एंकर क्यों बन रहे हैं? मेरी नौकरी पर नाविका क्यों जी, लात मार रहे नाविका जी देखिए, जो बात को 20 सेकंड लगनी है वो 40 एक मिनट हो रहा है, क्योंकि हर बात में इंटरप्ट कर रहे हैं। तीसरी बात, इन्होंने कहा कि जया बच्चन ने बोला कि मुझसे बड़ा एक्टिंग अवार्ड इनको मिलना चाहिए। मैं केवल इतना कह रहा हूं, एक महिला ने लेटर लिखा, ट्राइबल महिला ने, कि मेरे प्रॉक्सिमिटी में आकर मुझे अनकंफर्टेबल महसूस कराया गया। मुझे नहीं लगता कि किसी भी महिला, पहलवान बेटियों ने भी जो आरोप लगाया, हमने कभी उनके वर्जन को चैलेंज नहीं किया। और एक सांसद को जब एक आरोप लगा रही है, प्लीज इस प्रकार से उनका आपने चैलेंज किया और उनके प्रति उनके प्लीज, अब आप फैक्चुअली गलत विवेक जी प्लीज, लड़कियों को आपने चैलेंज किया। नाविका जी गलत है। नहीं शहजाद, दिस इज रॉन्ग। allow me to complete my शहजाद, you are saying something factually wrong. But how can you विवेक, challenge those girls? मैं शहजाद की पूरी स्टेटमेंट के बाद सबको काउंटर I का would like to वक्त counter दूंगी, मैं after this. सबको I'm काउंटर ready. का वक्त दूंगी। और दुष्यंत नागरकर
the way to शुरू do a करूंगी। debate. जी, They are बिल्कुल। making their आप points. अपना There are point 4 है। of them, an analyst and me. I have not interrupted anyone's statement, बिल्कुल but they're not सही। allowing me to speak in one statement. You are for three. you. 1, 2, 3. एक मिनट। अरे 3 है। वारिस भाई, वारिस भाई, आप My limited requirement is चलिए, at least let बिल्कुल। everyone speak 30 seconds. बिल्कुल 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 आप अपनी हर बात वक्त कीमती है, 1-1 सेकंड कीमती है देश का। जल्दी बोलो। Because ma'am, it breaks the बोलिए, flow. There are 5 बिल्कुल। things I have to answer. बिल्कुल। The audience won't आप बोलिए, understand. आप बोलिए। And he's not like that. I आप don't know why they are बोलिए। getting so perturbed. आप बोलिए। मैं अभी ये फिर से शुरू करूंगा। देखिए, जया बच्चन का ये कहना, जया बच्चन जी तब बहुत ऑफेंड हुई जब उनके नाम पे बच्चन डाला गया, हालांकि राज्यसभा की लिस्ट में वो नाम था। तो अपनी डिग्निटी के लिए तो वो खुद खड़ी हुई हाउस में, और एक महिला ने कहा कि राहुल गांधी मेरे क्लोज प्रॉक्सिमिटी में आके चीखते हैं, चिल्लाते हैं, जेस्चर करते हैं, उनके वर्जन को, एक ट्राइबल महिला के वर्जन को यहां पर अपमानित किया जा रहा है, उनकी डिग्निटी को कटघरे में खड़ा किया जा रहा है, और यहां पर जो सो कॉल्ड लिबरल्स है साथ में खड़े हैं। चलिए, मैं वारिस पठान की पार्टी का तो समझ सकता हूं, इनकी तो सोच ही बहुत पुरानी, 700, 800, 1000 साल पुरानी। वकालत करते हैं संविधान के दायरे में नाविका जी, एक लास्ट स्टेटमेंट है मेरा, पूरा एकदम लास्ट स्टेटमेंट है। इन्होंने कहा कि एएसआई का मैंडेट क्या है? एएसआई का मैंडेट है लॉ में कि अगर कोई प्राचीन पुरातन कोई स्थल है या कोई जगह या कोई मूर्ति है तो उसका कार्बन डेटिंग करके टेस्ट करे कि उसकी एज क्या है, ताकि उसका संरक्षण कर सके। तो इंटेंशन क्या है, मतलब क्या है, इंटेंशन क्या है? ये जो सबकी नियत जानने का आपका थर्मोमीटर है, ये आपसे मैं एक बार बोरो करना चाहूंगी। ये मैं आपसे लूंगी। लेकिन दुष्यंत नागर जी, मैं पूछना चाहती हूँ, एस फोनान कोन्याक ने जो कहा है, जो नागालैंड की सांसद हैं, तो राहुल गांधी जी का भी इंटेंशन कुछ बता दीजिए। आप लोग तो बड़ा दूर का इंटेंशन कोई लेते हैं, आप लोग तो बहुत दूर का इंटेंशन। वो तो महिला सांसद है, वो कह रही है कि हमारे साथ ये हुआ। पूरे कमाल हो गया आप लोग। इसमें धक्का मारा नहीं पता, सर पे पहले एक छोटी चोट, देखिए फिर एक पट्टा दिखा, फिर एक बड़ा पट्टा, दुष्यंत नागर जी, क्या सिर्फ अपने आप अपनी नेतागिरी चमकाने का एक ही ऑब्जेक्टिव, एक ही इंटेंशन रह गया है? कभी प्रियंका गांधी वाड्रा एक बैग ले जाती हैं फिलिस्तीन का, अगले दिन बांग्लादेश का, तीसरे दिन उन्हें 1984 राइट्स का दे दिया गया है। एक तरफ ये चल रहा है, दूसरी तरफ राहुल गांधी पर आरोप है धक्का मारने का, और अब महिला सांसद का स्टेटमेंट चिट्ठी में भी लिखा गया है, संसद में खड़े होकर उन्होंने बयान दिया है। एक महिला की बात आप मानने से, बिना इन्वेस्टिगेशन के आप मानने से इनकार कर रहे हैं, ये कहां का जस्टिस है? पहले मैं ये पूछूंगी। और तीसरी बात, ये संभल में अगर सर्वे हो रहा है, सेक्युलरली आज हो गया, तो किसी की चू नहीं निकलेगी। किसी ने बिजली चोरी पर कुछ नहीं कहा कि वहां क्या चल रहा है, लेकिन बाकी समय अरे भाई सब कुछ खोद रहे हैं, जबकि खुदाई कहीं नहीं हुई। मैं पूछना चाहती हूं, क्या सिर्फ और हर वक्त सिर्फ हम इलेक्शन मोड में रहेंगे, अपीजमेंट पॉलिटिक्स करते रहेंगे, या नेतागिरी चमकाते रहेंगे? देखिए जी, अपीजमेंट पॉलिटिक्स कौन कर रहा है ये तो सब जानते हैं। बहुसंख्यक वर्ग का संतुष्टिकरण करने का प्रयास भारतीय जनता पार्टी करती है। दूसरा, मैं आपके अपोजिशन किसका कर रही है? किसी का नहीं करते। तो किसानों की, गरीबों की, बाबा साहब के संविधान को लागू करने की बात करते हैं। कांग्रेस पार्टी क्या कर रही थी? कांग्रेस पार्टी कह रही थी 50% आरक्षण उन गरीब किसानों को दो, ओबीसी वर्ग के, जो मेहनत मशक्कत करके अपना काम करते हैं। अरे सर, उसमें तो सभी लोग आते हैं। सर, मैं किसी के बीच में बोला नहीं। वो कहते हैं भाई कास्ट सेंसस करो, देश का एक्सरे निकालो, कौन गरीब है, कितना पिछड़ा है, शिक्षा में किसका स्तर कहां है। तो मैं समझता नहीं इसमें किसी की अपीजमेंट है। ये तो समग्र एक समाज के एक वर्ग के उत्थान का सिर्फ एक तरीका वो लोग बता रहे हैं। दूसरा, मैं आपके प्रश्न में इनका प्रश्न भी जोड़ना चाहता हूं, जो इंटेंशन पूछ रहे थे। महंगाई खाद्य पदार्थों पर, अन्य सामानों पर ऊपर जा रही है, धक्का मुक्की, बेरोजगारी ऊपर जा रही है, धक्का मुक्की। इसलिए इनको ये सब मुद्दे तो आपने पार्लियामेंट में डिस्कस नहीं किए। इनको इसीलिए कर रहे हैं ये लोग। आपने एक भी धक्का मुक्की की बात कर रहा हूं मैडम, ऐसा नोटिस नहीं दिया जिसमें बेरोजगारी, जिसमें महंगाई, के सामने, जिसमें
कोई भी ऐसा डिबेट मांगा 140 गया हो। करोड़ आवाम के सामने मैं, जो नागालैंड की सांसद है, मेरी सिंपैथी उस महिला के साथ है, लेकिन वीडियो दिखाइए ना, कहां धक्का दिया। ये कानून, जिस कानून और जिस संविधान की आप बात करते हैं, वो सबको ये अधिकार देता है कि अगर कोई प्रश्न उन्हें डिस्टर्ब कर रहा है तो वो एक कानूनी प्रक्रिया के तहत कोर्ट जा सके। मोहन भागवत ने कहा है 1991 का प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है, वो रहेगा। आप कोर्ट पहुंचे प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के खिलाफ, नहीं, ये ऐसा झूठ मत बोलिए विवेक जी। बीजेपी और संघ में मॉन्यूमेंट एक्सक्लूडेड है, संचालक कुछ और कह रहे हैं, भाजपा का नेतृत्व कुछ और कह रहा है। झूठ मत बोलिए, लिखा हुआ है और मैं वो स्क्रीन पर चल रहा है। लेकिन विवेक साइलस जी, संभल क्या अब जरिया हो गया है सिर्फ नेतागिरी चमकाने का? क्योंकि सवाल ये उठता है कि संसद में राहुल गांधी हीरो हैं, तो फिर अखिलेश यादव को संभल से हीरो बनना है। उधर प्रियंका गांधी वाड्रा भी आ चुकी हैं। उधर जहां आप चुनाव लड़ने जाते हैं वहां असदुद्दीन ओवैसी साहब, वारिस पठान की पार्टी भी घुस जाती है। मुसलमान इधर उधर जा रहा है, तो हर कोई चाह रहा है कि भाई अपीजमेंट करो और सारे मुसलमानों को अपने पास रखो, और एक कंपटीशन छिड़ गया। देखिए, अपीजमेंट की पॉलिटिक्स कौन करता है 2024 के चुनाव में हमने देख लिया था, जब माननीय प्रधानमंत्री बोल रहे थे कि वो आएंगे और आपकी बहू बेटियों को उठा के ले जाएंगे, आपका मंदिर सूक्त ले जाएंगे, मुजरे तक उतर आए थे। तो किस तरह से वो राजनीति कर रहे थे, अपीजमेंट कौन कर रहा था, सब देख लिया। झारखंड के चुनाव में भी देख लिया। लेकिन देखिए, आपने शुरू में मंदिरों की बात की, मंदिरों को कैसे छुपाया जा सकता? जो लावारिस मंदिर है, मैं तो अपील करूंगा योगी आदित्यनाथ जी से, जिसमें पुजारी नहीं है, भक्त नहीं है, उसको तत्काल प्रभाव से खोला जाए, उसमें पुजारियों का अपॉइंटमेंट किया जाए। और जैसे आंध्र प्रदेश में, एक मिनट नाविका जी, बहुत जरूरी है, जैसे आंध्र प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी मौलानाओं को सैलरी दे रही है, वैसे पंडितों को भी सैलरी मिलनी चाहिए। अगर आप सच्चे हिंदू हैं तो। गौरी शंकर की पूजा याचना किसने बंद की थी? मैं वही बस कहने जा रहा था। प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 और 93 में समाजवादी पार्टी की सरकार ने श्री गौरी की पूजा रुकवा दी, जो अब जाकर शुरू हुई है, अदालत के आदेश से शुरू हुई है। कहीं भी कोई खुदाई नहीं हुई है। झूठ बोलना बंद कीजिए, नेशनल टेलीविजन पर जहर फैलाना बंद कीजिए। मोहन भागवत जी जो कह रहे हैं दुरुस्त बात कह रहे हैं, किसी मस्जिद के नीचे नहीं खोजा जा सकता। इंटेंशन वाला थर्मामीटर दीजिए। इंटेंशन क्या था पता है नविका जी, उसका मैं आपको बताता हूँ। 1991 में एक माहौल ऐसा क्रिएट हो रहा था बाबरी के एरा में, हिंदू मुसलमान में डिवाइड, मस्जिद मंदिर को लेके सब लफड़ा। तो एक दोनों सदन में चर्चा चली, लोकसभा राज्यसभा में। चर्चा के बाद ये तय पाया कि 15 अगस्त 1947 तक जितने भी प्लेसेस ऑफ वर्शिप, मॉन्यूमेंट, मस्जिद, दरगाह, उसका आप नेचर और कैरेक्टर चेंज नहीं कर सकते। ठीक बात है, बराबर। अब वो अभी तक लागू है, हटा नहीं है। उसके दरमियान में आप जाते हो लोअर कोर्ट में सर्वे कराने की एप्लीकेशन डालते हो, फिर आप सर्वे करने और इंटेंशन खत्म हो गया उसका प्लेसेस ऑफ वर्शिप का। यही कैसे आ गया? पूजा के लिए नहीं है, तो धार्मिक गौरी कैसे आ गया? नेचर कैरेक्टर तो कहीं का चेंज ही नहीं हुआ। नहीं कर सकते। एक सेकंड, बारिश लगातार नहीं बोल सकते, बारिश लगातार ये तरीका नहीं गलत को मानो, संविधान का सम्मान करो। बोला और जो बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान दिया उनका भी सम्मान के बारे में बोलते हैं और दूसरे के बारे में इंटरप्ट करते हैं। वारिस पठान ने बोला कि नेचर नहीं चेंज किया जा सकता, कैरेक्टर, सुनिए ना, कैरेक्टर नहीं चेंज किया जा सकता, डिटरमिन तो किया जा सकता है। नहीं, कैरेक्टर उसी ने कौन चेंज कर रहा है? अरे सर, सुनना पड़ेगा सर, हर एक फॉर्मर चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने भी कहा है। वो 5 मिनट बोलते हैं, दूसरा एक वाक्य भी ना बोले, ये क्या तरीका है भाई? हमारा भी तो एक अधिकार है ना बात रखने का। एक तो ये बोला, इन्होंने बोला कि कैरेक्टर चेंज नहीं किया जा सकता। किसने कैरेक्टर चेंज करने की बात की है? पर ओरिजिनल कैरेक्टर, ओरिजिनल स्वरूप। और दूसरी बात, जो ये प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है, वैसे तो इस्लाम धर्म का मैं भी अनुयायी हूं, इस्लाम में तो प्लेस ऑफ वर्शिप होती नहीं है, प्लेस ऑफ प्रेयर होती है। वर्शिप या उपासना स्थल तो केवल हिंदुओं के होते हैं। मतलब ये कानून केवल एक धर्म के खिलाफ, एक सेकंड मैं आपको बताता हूँ, विवेक जी आपको शायद नहीं पता, एक सेकंड। इस्लाम में उपासना है, इस्लाम में उपासना इबादत है कि नहीं है? इस्लाम में उपासना तो बोल दो, इस्लाम में उपासना, इस्लाम में उपासना है तो बोल दो। विवेक जी आपको तो पता नहीं, आप नमाज क्या है? नहीं जानते, मत बोलिए। अल्लाह की इबादत, नमाज क्या है?
नमाज क्या पढ़ते हो ना नमाज? दर्शकों, अभी उन्होंने बताया मैं मुसलमान हूँ बहुत बड़ा। चलो पढ़ के दिखाओ। मैं आज इस डिबेट में सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि देश हो, कोई जगह हो, वहां पर बहुत से कंट्रोवर्सीज होंगे, बहुत से सवाल होंगे। जहां 140 करोड़ जनता हो, वहां सवाल भी होंगे, वहां पर बहुत सी तकलीफें भी होंगी। लेकिन क्या पत्थरबाजी जो 24 नवंबर को हुई, इसका इलाज वो है? या फिर संसद की बात आए तो संसद में इस तरह की मारपीट, क्या ये इस पूरे मुद्दे का सार है? क्या इससे हमें कोई भी हल मिलेगा? कोर्ट में अगर कोई जा रहा है तो इस देश का संविधान उसे हक देता है कि नहीं? लेकिन बीच में नेतागिरी कौन चमका रहा है? क्या ये सिर्फ हर वक्त इलेक्शन मोड में रहने का तरीका है? क्या ये सिर्फ वोट बैंक और वोट बैग की राजनीति है? सवाल आज देश की जनता पूछ रही है। देश को अपने विवेक पर, विवेक साइलस और विवेक श्रीवास्तव पर नहीं, देश की जनता को अपने विवेक से काम लेना पड़ेगा और विवेक से काम लेकर आगे अपना रास्ता तय करना पड़ेगा। वरना संसद की तरफ देखेंगे तो सर फुटअव्वल की नौबत तो आ ही गई है। आगे क्या होगा राम जाने। आज सवाल पब्लिक का शो पर मेरे साथ जुड़ने के लिए तमाम पैनलिस्ट का और दर्शकों आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लेती हूं आपसे इजाजत, नमस्कार। जाइएगा मत, ब्रेक के बाद न्यूज जारी रहेगी।